جب سے انسانیت کی شروعات ہوئی ہے تب سے ہماری کوشش رہی ہے قدرت کو جاننے کی اور یہ جاننے کی کہ اس میں ہمارا مقام کیا ہے۔ زندگی کے مقصد کی اس تلاش کے سفر میں بہت سے لوگ مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ زیادہ تر مذہب کتابوں پر نربھر ہیں اور ان کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں ان کے خدا کی طرف سے ہیں، جبکہ ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اسلام ایک الگ ہی مذہب ہے کیونکہ یہ دلیل اور ثبوت پر نربھر ہے۔ اس کی کئی نشانیاں ہیں جو صاف صاف یہ بتاتی ہیں کہ یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں کئی سائنٹیفک اور تاریخی حقیقتیں پائی جاتی ہیں، ایسی حقیقتیں جو اس دور میں کسی کو پتہ نہیں تھی اور یہ حال ہی میں آج کی سائنس کے ذریعے پتہ لگائی گئی ہیں۔ قرآن کو ایک الگ ہی انداز میں لکھا گیا ہے جس کی نقل نہیں کی جا سکتی، اور قرآن کا دور دور تک بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ قرآن میں بہت سی پیش گوئی یعنی پروفیسیز کی گئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی پروفیسیز کی ہیں، ایسے پروفیسیز جو ہم آج دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں قرآن میں سے کچھ حقیقتیں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 1، زندگی کا آغاز۔ پانی ہر ایک زندہ چیز کے لیے ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے، لیکن قرآن ایک الگ ہی دعویٰ کرتا ہے۔ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس آیات میں پانی کو ساری زندگی کا آغاز کہا گیا ہے۔ تمام زندہ چیزیں یعنی انسان، جانور، سب کچھ سیل سے بنائے ہوئے ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ سیلز کا زیادہ تر حصہ پانی سے بنا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بایولوجی ٹیکسٹ بکس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اینیمل سیلز کے سائٹوپلازم کا 80% حصہ پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت کہ زندہ چیزیں زیادہ تر پانی سے بنی ہوئی ہیں، یہ صرف مائکروسکوپ کے بننے کے بعد ہی پتا چلا ہے۔ صحرائی عرب میں آخری چیز جو کسی نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ساری زندگی کا آغاز پانی سے ہوا ہے۔ نمبر 2، لوہا۔ لوہا ہماری زمین کے لیے قدرتی نہیں ہے، مطلب یہ اس زمین میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ اسپیس سے ہماری اس زمین پر آیا ہے۔ یہ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا مگر یہ سچ ہے۔ سائنٹسٹ نے پتہ لگایا ہے کہ اربوں سال پہلے ہماری اس زمین پر میٹیورائٹس آ گرے تھے، اور یہ میٹیورائٹس جو دور دراز ستاروں کے تباہ ہونے سے آئے تھے، ان میں لوہا موجود تھا۔ قرآن مجید میں لوہے کے وجود کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم نے لوہے کو اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی۔ اللہ نے قرآن میں ان الفاظوں کا استعمال کیا ہے، لوہے کو اتارا۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوہا اس زمین کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ انسانوں کے فائدے کے لیے اتارا گیا ہے۔ یہ حقیقت کہ لوہا اسپیس سے اس زمین پر اتارا گیا ہے، 7ویں صدی کے سائنس کے ذریعے اس حقیقت کے بارے میں جاننا ناممکن ہے۔ نمبر 3، آسمانی حفاظت۔ یہ آسمان اس زمین کی حفاظت کا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آسمان اس زمین کو سورج سے نکلنے والی نقصان دہ کرنوں سے بچاتا ہے۔ اگر آسمان نہیں ہوتا تو یہ سورج کی کرنیں اس زمین پر رہنے والی ہر ایک زندگی کو ختم کر دیتی، اور ساتھ ہی یہ اس پلانٹ کے لیے ایک بلینکٹ کا بھی کام کرتا ہے جو اسپیس میں موجود جان لیوا سردی سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ سردی جو اسپیس میں موجود ہے وہ اگر زمین پر پہنچ جائے تو یہ پوری دنیا فوراً جم جائے گی، اور ساتھ ہی یہ آسمان گرین ہاؤس ایفیکٹ کے ذریعے اس زمین کو گرم رکھتا ہے، جس سے اس زمین پر رہنے والی جاندار چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یہ دن اور رات کے درمیان اس ٹیمپریچر کو بیلنس رکھتا ہے۔ یہ آسمان کی کئی خصوصیات میں سے صرف میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں، اور قرآن کی اس آیت میں آسمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دیتے۔ قرآن میں آسمان کو اللہ کی موجودگی کے ثبوت کے طور پر بتایا گیا ہے، اور آج آسمان کی ان خاصیتوں کے بارے میں سائنٹیفک ریسرچ سے پتا چلا ہے جو 20ویں صدی میں کی گئی ہیں۔ نمبر 4، پہاڑ۔ قرآن ہمیں ان پہاڑوں کی ایک بہت ہی اہم خصوصیات کے بارے میں بتاتا ہے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟
कुरान से हमें यह पता चलता है कि पहाड़ों की गहरी जड़ें होती हैं और इसकी वजाहत के लिए यह लफ्ज मेखें इस्तेमाल किया गया है। हकीकत में पहाड़ों की गहरी जड़ें होती हैं और ये लफ्ज मेखें इसकी दुरुस्त वजाहत यानी डिस्क्रिप्शन है। एक अर्थ नामी किताब जिसको जियोफिजिसिस्ट फ्रैंक प्रेस ने लिखा है, इसमें बताया गया है कि पहाड़ मेखों की तरह हैं और ये जमीन की सतह के नीचे गहराई में गाड़े गए हैं। माउंट एवरेस्ट जो जमीन से तकरीबन 9 किलोमीटर ऊंचा है, इसकी जड़ें 125 किलोमीटर से ज्यादा गहरी हैं। ये हकीकत कि पहाड़ों की गहरी जड़ें होती हैं, ये किसी को पता नहीं थी जब तक कि 20वीं सदी की शुरुआत में ये प्लेट टेक्टोनिक्स नाम की थियरी तैयार नहीं हुई थी। नंबर 5, कायनात की तफसील। ऐसे वक्त में जब साइंस बहुत ही पीछे थी, तब इस कायनात की तफसील के बारे में कुरान के अंदर बयान किया गया है। आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम ही इसकी कुशादगी करने वाले हैं, यानी तफसील करने वाले हैं। यह हकीकत कि इस कायनात का साइज बढ़ रहा है यानी तफसील हो रहा है, इस हकीकत को पिछली सदी में ही पता लगाया गया था। एक फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा है, ये खोज की कायनात की तफसील होती है, ये 20वीं सदी की एक सबसे बड़ी खोज में से एक है। कुरान मजीद में कायनात की तफसील का जिक्र टेलीस्कोप के बनने से पहले किया गया था। नंबर 6, सूरज का मदार। 1512 में निकोलस कोपरनिकस नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने अपना यह नजरिया पेश किया था कि सूरज को यह हरकत नहीं करता, यानी वो हिलता नहीं है। यह सोलर सिस्टम के बीच में मौजूद है और प्लैनेट्स इसके गिर्द घूमते हैं। यह मानना कि सूरज स्थिर रहता है यानी वो कोई हरकत नहीं करता, ये थियरी 20वीं सदी तक बहुत फैल चुकी थी। लेकिन अब ये एक परफेक्ट साइंटिफिक फैक्ट है कि सूरज स्थिर नहीं है, बल्कि ये हमारी मिल्की वे के सेंटर के गिर्द एक ऑर्बिट में घूमता है। कुरान में सूरज के इस मदार के बारे में यानी इसके ऑर्बिट के बारे में बताया गया है, वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, इनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। कुछ सदी पहले वो एस्ट्रोनॉमर्स कुरान की इस आयत को गलत समझते होंगे, लेकिन अब हम जानते हैं कि सूरज की इस हरकत का ये कुरानी बयान और आज की साइंस की ये खोज दोनों सेम है। नंबर 7, समंदर। कुरान अपने गहरे मायनों को समझाने के लिए एक इमेजिनरी तस्वीर का इस्तेमाल करता है और यहां वो काफिरों की हालत को बयान कर रहा है। गहरे समंदर में फैला हुआ अंधेरा कि समंदर को एक लहरों ने ढांप रखा हो, जिनके ऊपर एक और लहर हो और उसके ऊपर बादल। गर्ज ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे, अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो वो उसे भी ना देख पाए, और जिस शख्स को अल्लाह ही नूर अता ना करे उसके नसीब में कोई नूर नहीं। आमतौर पर यह माना जाता था कि लहरें सिर्फ समंदर के सतह पर ही आती हैं, लेकिन समंदर की जानकारी रखने वालों ने यह पता लगाया है कि अंदरूनी लहरें भी होती हैं जो समंदर की सतह के नीचे होती हैं। इन लहरों को हमारी आंखें देख नहीं सकती, कुछ इक्विपमेंट्स के जरिए ही इसे पता लगाया जा सकता है। कुरान मजीद में समंदर की गहराई में मौजूद अंधेरे का जिक्र किया गया है, जिसके ऊपर लहरें हैं, फिर इसके ऊपर लहरें हैं और इसके ऊपर बादल हैं। ये तफसीर सिर्फ इसलिए हैरत अंगेज नहीं है कि यह समंदर के अंदरूनी लहरों के बारे में बताती है, बल्कि इसलिए भी कि इसने समंदर के गहराई में मौजूद अंधेरे को भी बयान किया है। एक इंसान ऑक्सीजन के सामान के बगैर 70 मीटर से ज्यादा गहरे होते नहीं लगा सकता। इस गहराई में रोशनी मौजूद होती है, लेकिन अगर हम 1000 मीटर की गहराई में जाएं तो वहां मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है। 1400 साल पहले तब कोई सबमरीन से अंदरूनी लहरों को पता लगाने वाले औजार नहीं थे और न ही समंदर की गहराई में मौजूद अंधेरे के बारे में पता लगाया जा सकता था। नंबर 8, झूठ बोलना और दिमाग की हरकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अबू जहल नाम का एक जालिम लीडर था। अल्लाह ने इसको खबरदार करने के लिए एक कुरानी आयत नाजिल की, यकीनन अगर ये बाज ना आया तो हम इसको इसकी पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी और खताकार है। अल्लाह ने इस शख्स को झूठा नहीं कहा, बल्कि इसकी पेशानी यानी इसके दिमाग के अगले वाले हिस्से को झूठा और खताकार कहा और इसे ये सब रोकने के लिए खबरदार किया। इस आयत के अहम होने की 2 वजह हैं। पहली ये है कि हमारे दिमाग का अगला हिस्सा वॉलंटरी हरकतों के लिए जिम्मेदार है
और दिमाग के इस हिस्से को फ्रंटल लोब कहते हैं। एसेंशियल्स ऑफ एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी नाम की एक किताब है जिसमें इस हिस्से के अफ़आल के बारे में तहकीकाती नतीजे बताए गए हैं कि हौसला और किसी प्लान की दूरंदेशी करना और कोई हरकत करना, ये सब इस फ्रंटल लोब के अगले हिस्से में पाए जाते हैं जिसे प्री फ्रंटल एरिया कहा जाता है। दूसरा, बहुत सारी स्टडीज में यह पता चला है कि दिमाग का यही हिस्सा, ये फ्रंटल लोब ही झूठ बोलने की हरकत के लिए जिम्मेदार है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इसकी एक स्टडी की गई थी जिसमें कंप्यूटराइज्ड इंट्रोगेशन के अंदर लोगों से सवालात पूछे गए थे, जिससे ये पता चला कि जब वो लोग झूठ बोल रहे थे तब उनके फ्रंटल लोब के हिस्से की हरकतों में इजाफा हो रहा था। दिमाग का अगला हिस्सा ही हरकतों के लिए और झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार है। कुरान दिमाग के इस हिस्से को तहरीक और झूठ बोलने से जोड़ता है। फ्रंटल लोब की इस हकीकत को मेडिकल इमेजिंग के इक्विपमेंट्स के जरिए पता लगाया गया है। ये इक्विपमेंट्स या ये मशीन्स 20वीं सदी में तैयार की गई हैं। नंबर 9, पेन रिसेप्टर्स। एक लंबे अरसे से यह माना जा रहा था कि एहसास और दर्द को महसूस करने की काबिलियत सब दिमाग पर निर्भर होती है, लेकिन अब ये पता लगाया जा चुका है कि पेन रिसेप्टर्स हमारी स्किन में ही मौजूद होते हैं। इन पेन रिसेप्टर्स के बगैर इंसान दर्द महसूस नहीं कर सकता। इस आयत को नोट करें जो दर्द के बारे में बताती है। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे। जब उनकी खालें जलकर राख हो जाएंगी तो हम उसे नई खालों में बदल देंगे ताकि वो अजाब चखते रहें। यकीनन अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताता है कि वो लोग जो इसके पैगाम का इनकार करते हैं कि जब ये लोग जहन्नम में होंगे इनकी खालें पूरी तरह से जल जाएंगी और फिर तब वो इसकी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकेंगे। तब अल्लाह उन्हें नई खालें अता कर देगा जिससे कि वो दर्द को फिर से महसूस कर सकेंगे। कुरान वाज़ेह तौर पर इस बात को जाहिर करता है कि दर्द हमारी खाल पर निर्भर होता है। ये खोज कि हमारी खाल के अंदर पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ये बायोलॉजिकल फील्ड की एक हाल ही में की गई खोज है। कुरान मजीद में पाए जाने वाले बहुत सारे हकीकतों में से ये सिर्फ कुछ हकीकतें हैं। यह जानना जरूरी है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, लेकिन ये असल साइंस से मुताबिक है। यह दावा करना कि कुरान में साइंसी हकीकतें इत्तेफाकी हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। कुरान की सबसे बेहतर वजाहत यह है कि अल्लाह ने ये इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। जिस तरह कुरान में फितरी दुनिया के बारे में जानकारी है, इसमें हमारी रूह के अंदरूनी हालात के बारे में भी मालूमात मौजूद हैं। इसका ताल्लुक हमारे जज्बात से है, हमारी ख्वाहिशात से है और हमारी ज़रूरियात से है। कुरान हमें ये बताता है कि हमारी जिंदगी का एक मकसद है और अल्लाह की हिदायत पर अमल करते हुए हम इस जिंदगी में सुकून और आखिरत में जन्नत हासिल कर सकते हैं। और अगर इसके पैगाम का इनकार करेंगे तो इस जिंदगी में भी सुकून नहीं रहेगा और आखिरत में जहन्नम हमारा मुकद्दर बनेगी। अनक़रीब हम इन्हें अपनी निशानियां कायनात में भी दिखाएंगे और खुद इनके अपनी जात में भी, जब तक उन पर यह बात खुलकर सामने आ जाए कि हक यही है। क्या तुम हर रब की ये बात काफी नहीं कि वो हर चीज का गवाह है? जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।